Hello everyone. Once again I am here in my YouTube channel, that is Damayanti Commerce Tutorial. I welcome you all to my YouTube channel and to my class. I hope everybody, those who are viewing my channel, my lectures, please keep on giving your valuable comments, keep on liking and keep on subscribing, keep on sharing as many as you can do. Along with that, keep on giving your valuable comments and suggestion. I always welcome you all for that. Thank you so much for blessing. Thank you so much, my dear children, for making me so special. While reading your comments, I really feel blessed to have you all. So thank you and thank you and thank you so much. Love you all. One very important thing, try to be safe from this COVID infections. Okay, be safe, stay indoors, keep on washing your hands, okay, time to time. So let us begin the first chapter of business study of class 11, that is nature and purpose of business. Okay, now this is the last topic of this chapter, that is business risk. What is the last topic? Last topic is business risk. I hope the term risk is not a new term for you all. रिस्क का मतलब ही होता है नुकसान होने के चांसेस का होना. Risk means possibility of losses, right? Risk means what? Possibility of losses. So here once again I am here to explain you what is business risk. 3 answers I have written. Anyone if you write in your examination, that will be considerably correct. Okay? First is probability of losses. Second is inadequate profits due to uncertainties. And third is uncertain events beyond our control. अब मैं आपको बताती हूँ probability of losses. अब मान लीजिए हमने नया बिजनेस शुरू किया और हमने कॉस्मेटिक्स का बिजनेस शुरू किया, जहाँ पे लैक्मे, रेवलॉन, इस तरह के बड़े बड़े ब्रांड्स हैं. वहाँ पे अगर हम फैशन नाम का लिपस्टिक इंट्रोड्यूस करेंगे या ग्लॉसी नाम का लिपस्टिक इंट्रोड्यूस करेंगे, तो व्हाट डू यू फील? कस्टमर वुड लाइक टू हैव? No, there is a possibility of loss, right? Because we are going to compete with the well-settled industries, okay? Inadequate profits due to uncertainties, we felt that our business will definitely grow up. लेकिन किन्हीं कारणों से हम नहीं कर पाए, हमने जितना प्रॉफिट अर्न करना चाहिए था हम नहीं कर पाए. सिंपल सा है, अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हैं तो व्हाट यू डू, यू हैव अ रफ एस्टिमेट ऑफ योर एक्सपेंडिचर्स. जो भी आप खरीदने जा रहे हैं उसका एक आप बजट लेके चलते हैं. आप अगर अपने लिए एक ड्रेस लेने जा रहे हैं तो आप अपना एक बजट लेके चलेंगे कि हम 2000 का ड्रेस खरीदेंगे, हम 3000 का खरीदेंगे, कुछ ऐसा एक रफ एस्टिमेट आप बना के चलोगे. लेकिन सपोज करो आपने ऐसी ड्रेस पसंद कर ली जिसका दाम ही 10,000 था, तो फिर इनएडिक्वेट मनी हो गया ना आपके पास. तो दिस इज कॉल्ड inadequate profits due to uncertainties. And the third is uncertain events, that is beyond control. हम natural calamities को control नहीं कर सकते. अभी देखो, अभी क्या है, हर जगह बाढ़ की situation है. Everywhere you can find there is a very poor situation. Everywhere you can hear landslide हो गया, इतने लोग मर गए, बाढ़ से ये ज़िले बहुत ग्रसित है. असम वगैरह की हालत बहुत बुरी है, साउथ में बहुत ख़राब है. So that is what? That is the natural calamities which are not in our control. हम एक जगह उसकी कोई व्यवस्था करेंगे कि यहाँ के लोगों को सुरक्षित करेंगे, पता चला दूसरी जगह पे लैंडस्लाइड हो गया. We can't predict these natural calamities. और आज के प्रेजेंट सिनारियो में COVID is one of the biggest problem for each and every type of businessman. Okay. Now let us start the business risk types. How many types of business risk we have? We have basically 4 types. How many types? We have 4 types of business risk. In many books only 2 types are given, but 2 I have added just for the sake of your knowledge. One is a speculative. Spectators, speculation, सट्टा बाजारी, सट्टा लगाना, ये सारे बहुत ही हमारे कॉमन टर्म्स है जो हम जनरली अपने घरों में सुनते हैं. अगर आपके पेरेंट्स शेयर में इन्वेस्ट करते होंगे तो यू माइट हैव हर्ड दिस वर्ड कि सट्टेबाजी है. मैच फिक्सिंग होता है,
मैच फिक्सिंग होता है ना, दैट इज व्हाट, दैट इज अ काइंड ऑफ स्पेक्यूलेशन. वहाँ पे चांसेस है ना, अगर मैच जीत भी सकता है कोई कंट्री, मैच हार भी सकता है, यानी पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस एज वेल एज प्रॉफिट, राइट. तो ये क्या, ये जो 50-50 चांसेस है ना पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस के, तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं स्पेक्यूलेटिव रिस्क, वेयर ईदर वी विल बेयर लॉस और वी विल नॉट बेयर लॉस. अगर हमारा लिपस्टिक मार्केट में चल गया, क्वालिटी हमने बहुत स्टैंडर्ड रखी, रेट हमने सबके रेंज के हिसाब से रखा, क्वालिटी यानी हमने बहुत बढ़िया मेंटेन की, अच्छे इंग्रेडिएंट्स हमने डाले, कोई भी स्किन एलर्जी का हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं आया, राइट. और हमने ऐसा बनाया उसको कि लो ग्रेड का मेंबर भी उसको खरीद सके, राइट. मीन्स पॉवर्टी लाइन वाले, जैसे कि शैम्पू के सैशेज आते हैं, बॉटल भी आती है 500 रुपये की और सैशे 1 रुपये का भी आता है, राइट. तो दिस इज व्हाट, टू कैप्चर ईच एंड एवरी काइंड ऑफ कस्टमर्स. सो ईदर लॉस और नो लॉस. जैसे हमने अभी कोविड की मेडिसिन बनाने के लिए पूरा विश्व लगा हुआ है. वंस मेडिसिन विल बी आइडेंटिफाइड देन इट विल बी सक्सेसफुल, मीन्स देयर इज विल बी नो लॉस. अगर मेडिसिन हमारी सक्सेसफुली नहीं ट्रायल पे सक्सेस हुई तो वो पूरी लॉस में चली जाएगी. तो दिस इज व्हाट, दिस इज द ईदर वी हैव टू बेयर द कंप्लीट लॉस और देयर विल बी नो लॉस. नाउ द थर्ड काइंड इज इंश्योरेबल एंड द फोर्थ काइंड इज नॉन इंश्योरेबल. With its name, I hope it is very understandable. Insurable risk are those risks which can be insured through insurance companies. अगर हमारे यहाँ आग लग जाए, शॉर्ट सर्किट से लग जाए, कुछ किसी और प्रॉब्लम से लग जाए, या फिर चोरी हो जाए, तो these all can be compensated by the insurance company. But if इकोनॉमिक रिस्क इज देयर, अभी किसी ने सोचा था कि कोविड के कारण लॉकडाउन हो जाएगा और कोई कुछ नहीं कर पाएगा, सबके बिजनेस ठप हो जाएंगे. डिड एनीबडी हैज थॉट ऑफ इट? नो. सो दिस इज व्हाट, दिस इज द इकोनॉमिक कॉज, दिस इज द इकोनॉमिक रिस्क. मीन्स ये एक ऐसा रिस्क है जिसको कोई भी इंश्योरेंस कंपनी कवरेज नहीं दे सकती. तो दिस इज व्हाट, दिस इज द टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क. नाउ let us come, what are the reasons that risk arises? There are basically, we have 4 causes of business risk. One is natural causes, अभी मैंने आपको बताया, कहीं फ्लड आ जाए, कहीं लैंडस्लाइड हो जाए, कहीं सुनामी आ जाए, कहीं तूफान आ जाए. इतने बड़े बड़े तूफान अभी थे, बहुत सारे तूफान थे. दूसरा ह्यूमन कॉज, हमने जानबूझ के किया, जेलसी में किया, वो तो आगे बढ़ रहे हैं, हम पीछे बढ़ रहे हैं, हम पीछे हो रहे हैं, राइट. दूसरा इकोनॉमिक कॉज, अभी जो कोविड के कारण हो गया, दिस इज व्हाट इकोनॉमिक कॉज, हम उसमें किसी को ब्लेम नहीं कर सकते. अदर कॉजेज में क्या है, पॉलिटिकल, अभी मोदी जी की सरकार है, कल मान लो उनका तख्ता पलट गया, किसी और की सरकार आ गई, पॉलिसीज बदल जाएंगी. मोदी जी आए, एजुकेशन पॉलिसी चेंज हो गई. मोदी जी आए, जम्मू कश्मीर से 370 हट गया. मोदी जी के आने के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई. तो दिस इज व्हाट, दिस इज द पॉलिटिकल कॉज. नाउ वन मोर कॉज आई हैव रिटन, दैट इज टेक्निकल. सपोज हम जिस मशीन में काम कर रहे हैं वो मशीन खराब हो गई, तो हमारी भी गलती नहीं है, इकोनॉमिक कॉज भी नहीं है, ह्यूमन एरर भी नहीं है, नेचुरल भी नहीं है. तो फिर ये है क्या, ये टेक्निकल एरर है, मैकेनिकल एरर है कि उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई, इस वजह से हमारा काम रुक गया. एंड नाउ the last but not the least, I'm going to explain you about the nature of business risk. रिस्क का नेचर कैसा होता है, अच्छा होता है, बहुत लविंग होता है, या बहुत कड़वा होता है. इन शॉर्ट मिला जुला होता है. इट अराइजेज ड्यू टू अनसर्टेनिटी, हमें पता नहीं होता कि ये होगा या नहीं होगा. वी ओनली अज्यूम. अकाउंटेंसी में हम पढ़ते हैं कि वी ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द एक्सपेक्टेड लॉसेज. तो दिस इज व्हाट अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटी. किसी को पता था कि कोविड आ जाएगा, किसी को पता था कि लॉकडाउन हो जाएगा, किसी ने लाइफ में कभी ख्वाब में भी ऐसा सोचा था कि जानवर बाहर घूमेंगे और हम सारे इंसान पिंजरे में कैद रहेंगे? नहीं ना. तो दिस इज व्हाट, दिस इज द अनसर्टेनिटी. इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस. दुनिया का कोई बिजनेस बिना रिस्क के हम प्लान कर ही नहीं सकते, राइट. दुनिया का कोई बिजनेस हम बिना रिस्क के प्लान नहीं कर सकते. तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड, इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस. थर्ड इज डिग्री डिपेंड्स ऑन नेचर एंड साइज. अगर हमारा बेकरी का बिजनेस है तो हमारा सामान कुछ दिन टिक जाएगा.
अगर हमारा मिल्क प्रोडक्ट का बिजनेस है तो हमारे सामान जल्दी खराब हो जाएंगे, तो रिस्क वहाँ पे हाई रिस्क हो गया हमारा। अगर हम पैस्चराइज्ड फूड्स कर रहे हैं तो वहाँ रिस्क हमारा थोड़ा लो हो जाता है, क्योंकि डीप फ्रीजर में रखेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। सो इट डिपेंड्स ऑन साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस। लास्ट, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क टेकिंग। ये मैंने आपको रोल ऑफ प्रॉफिट में भी पढ़ाया था कि प्रॉफिट क्या है, हमारा रिस्क टेकिंग का रिवॉर्ड है, राइट? सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर ऑल, हैव अ नाइस डे एंड बी ब्लेस्ड। थैंक यू।